So hello everyone, welcome again to our daily news analysis session. I'm Dinesh Kumar and I'm working as an academic head of monologue classes. So in today's session I will discuss with some of the important news from your examination point of view. And the first news is SC lift stay on Haryana quota for private jobs. So basically Haryana legislature has passed a bill, and now we can say this is an act, and in this act Haryana legislature has given 75% reservation for the local youth in private job sectors in the salary of less than 30,000 per month. मीन्स ऐसी जॉब जिसमें 30,000 रुपये तक सैलरी है, सारी प्राइवेट जॉब्स में से 75% जॉब्स जो हैं दीज विल बी अवेलेबल टू द लोकल यूथ ऑफ हरियाणा in private industries. So this decision or this act passed by the Haryana legislature was challenged before Punjab and Haryana High Court regarding its constitutional validity, because it is creating interference in the right to do any business, occupation and profession of the industries that has been given to the various persons or citizen of India under Article 19(1)(g) as well. So now this Honorable Punjab and Haryana High Court stayed this law, but Honorable Supreme Court has lifted the ban imposed by the Honorable Punjab and Haryana High Court, and Honorable Supreme Court has given some directions to the Honorable High Court in this regard. और डायरेक्शन में Honorable Supreme Court ने ये कहा है कि the way you have put the imposition, the way you have put the restriction, or the way you have imposed the ban on the implementation of this law is not in accordance to the law. जिस तरह से आपने इस पर बैन लगाया है वो लॉ के अनुसार नहीं है. क्यों नहीं है? सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टू इम्पोज बैन और टू डिक्लेयर एनी लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल देयर शुड बी मैनिफेस्ट इलीगैलिटी. मैनिफेस्ट इलीगैलिटी मतलब प्राइमा फेसाई ऐसा दिखना चाहिए कि वो पर्टिकुलर लॉ जो है दैट इज अगेंस्ट द लॉ और दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज नॉट द वे ए statutes ought to be dealt with. We are not on merit but the way in which the High Court dealt with this. So Honorable Supreme Court ने कहा है कि किसी भी लॉ के साथ इस तरह से नहीं डील करना चाहिए कि आपने लॉ की लीगलिटी को नहीं देखा, उसके लीगल क्वेश्चन को नहीं समझा और डायरेक्टली प्राइमा फेसाई उस पर बैन लगा दिया. सो दिस शुड नॉट बी डन. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी आर नॉट गोइंग इनटू द मेरिट ऑफ दिस लॉ, बट द प्राइमा फेसाई बैन should not have been imposed by honorable court on this particular law. So this was the news. So now you should read the relevant articles regarding this, and you should read article 16 specifically of Constitution of India that provides for the reservation in this. Now we come to next news. All these news are not important from your examination point of view. Now we come to this news in brief. Why was Khalid produced in handcuff? Asked court. So basically I am not going into the detail of this news, but I am just telling this handcuff. It means that if if a person is arrested by the police and that person is respecting the police and he is obeying the direction of the police, and there is no reasonable apprehension that he will escape from the custody of police, then that person should not be handcuffed. मतलब कानून ये कहता है, CRPC ये कहती है कि अगर किसी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उसके भागने के चांसेस नहीं हैं, वो पुलिस की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो उसको हैंडकफिंग नहीं होनी चाहिए. बिकॉज पुटिंग ए पर्सन और यूजिंग हैंडकफिंग फॉर ए पर्सन अमाउंट टू द दिस more restrictions.
more restrictions, or we can say that unreasonable restrictions. This amount to unreasonable restrictions, so it should not be allowed. So this is the only important part of it. Now we come to the next news. No change in insignia, colors, badge in addition. So basically दिल्ली पुलिस हैज चेंज इस लोगो. तो पहले दिल्ली पुलिस के लोगो पर अशोक पिलर हुआ करता था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने अपने लोगो पर इंडिया गेट की तस्वीर लगा दी है. सो दिस हैज़ बीन ए कंट्रोवर्शियल इशू. ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दैट कंट्रोवर्सी. बस आपकी केवल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि दिल्ली पुलिस ने अपने लोगों को चेंज कर दिया गया है. नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. These are political news. Now we come to this editorial. It is very important. So it provides for, and you may get this, you may get a passage in your examination from this editorial. So you should read it very carefully. So this editorial is providing for the road safety challenges before India. So according to the author R.K. Viz, India has still to get a good grip on road safety. तो बेसिकली हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में जो रोड सेफ्टी है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, और इसमें एज पर द डेटा दैट अभी हमारे देश में काफ़ी एक्सीडेंट या काफ़ी जो डेथ होती हैं, these happens due to the road accident. So जो यूनियन मिनिस्टर हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने ये एक एश्योरेंस दी है कि 2025 तक हम 50% जो रोड एक्सीडेंट हैं उनको कम कर देंगे. मींस कि हम इतने अच्छे रोड प्रोवाइड कराएंगे ताकि हमारे जो रोड पर होने वाले एक्सीडेंट हैं वो कम हो. साथ ही उन्होंने कहा कि बाई 2030 हम जीरो डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट की पॉलिसी को अचीव कर लेंगे. मतलब ऐसा नितिन गडकरी जी का कहना है कि 2030 तक हमारे देश में रोड एक्सीडेंट की वजह से किसी की डेथ नहीं होगी. ये उनकी एश्योरेंस है. नाउ वी कम टू सम ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल कोर्ट इन दिस रिगार्ड. सो नाउ वी कम टू दिस कोर्ट. Honorable Supreme Court of India, while learning the petition, hearing the petitioner डॉक्टर एस राजशेखरन. तो डॉक्टर राजशेखरन ने एक पेटिशन फाइल की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग द इनएडिक्वेट मेजर्स ऑफ रोड सेफ्टी इन अवर कंट्री. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना कंसर्न इसमें किया है कि भाई रोड सेफ्टी इज़ नॉट एडिक्वेट इन अवर कंट्री एंड वी शुड इम्प्रूव इट. तो हमें इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है. अब हम आते हैं, अगर देयर इज़ अ रिसेंट अमेंडमेंट इन द मोटर व्हीकल एक्ट 1988. तो इसमें अभी अमेंडमेंट किया था 2019 में, बट देर आर सर्टेन कंसर्न इन दिस रिगार्ड एज वेल. मीन्स कि हमने लॉ में तो अमेंड किया, लेकिन जो हमने लॉ में अमेंड किया वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली. सो देर आर वेरियस रीजन्स वाई दैट इट इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड. सो सम ऑफ द अमेंडमेंट एंड द न्यू सेक्शंस विच मेड ट्रैफिक वायलेशंस मोर स्टूडेंट्स came into effect from 1st September 2019. However, most states did not increase the corresponding compounding traffic violation fee. तो बेसिकली अब यहाँ पर क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट है वो पार्लियामेंट ने उस पर लॉ बना दिया गया, लेकिन इट विल आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट. तो यहाँ पर क्या होगा है कि जो बहुत सारे स्टेट्स हैं दे डिड नॉट इंक्रीज द फाइन अमाउंट. अब फाइन अमाउंट उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया है? देयर मे बी वेरियस रीजन्स बिहाइंड दैट. Some of the reasons may be the political reason, some of may be the reasons that the different political parties are having the government in those states. So but because of not increasing the fine, that this amendment act of 2019 is not being implemented. It is in its true spirit. Second, this increase was criticized and people protested on the pretext that the fine paying capacity of the average Indian is still limited. तो जहाँ पर ये फ़ाइन को इंक्रीज़ कर दिया गया है वहाँ पर लोगों का कंसर्न ये है कि द फाइन के पेइंग कैपेसिटी इन आवर कंट्री इज़ लिमिटेड. मीन्स हम लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है दैट वी कैन पे द फाइन. सेकंड है
enforcement power that is available is insufficient to deal with the steadily increasing volume of traffic. Means हमारे देश में जो इसको एनफोर्समेंट पावर, मैन पावर है, मैन पावर मीन्स जो ट्रैफिक पुलिस है हमारे पास, तो हमारे पास ट्रैफिक पुलिस उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि जिस वॉल्यूम में या जिस नंबर में हमारे ट्रैफिक बढ़ रहा है. तो हमारा ट्रैफिक काफ़ी बढ़ रहा है, बट आवर पुलिस इज़ लिमिटेड. So this is one of the reason that we have more traffic accident or more road accident in our country, and it claims the death of various innocent person. Now we come to next. Now हम कैसे पता करेंगे कि कितने नंबर्स ऑफ व्हीकल हैं, या कैसे हम इसको एक स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं. तो इसमें द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट हैज सजेस्टेड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रैफिक व्हीकल. तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स रजिस्टर्ड हुए हैं, फिर उसको हम उसके प्रोपोर्शन में देखेंगे कि हाउ मेनी पुलिस दिस ट्रैफिक पुलिस पर्सन वी आर हैविंग इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट. सो उसके बेसिस पर हम ये फाइनली क्लैरिफाई कर पाएंगे दैट हाउ मेनी मैन पावर वी रिक्वायर टू डील विद द ट्रैफिक वायलेशंस और एंड एंश्योरिंग द रोड सेफ्टी. नेक्स्ट है Perhaps the most challenging task is to improve the driving skill of the driver. अब हमारे देश में क्या होता है कि जो ड्राइवर लोग हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड भी नहीं होते, और उनकी जो सर्विस कंडीशंस है और वर्किंग कंडीशंस हैं, दीज आर नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ. मीन्स उनको बहुत ज़्यादा कम सैलरी मिलती है, वो एजुकेटेड भी नहीं है, ठीक है, और उनको अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती, और वो ऐसी वर्किंग कंडीशन में काम करते हैं विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन. तो यहाँ पर इसकी वजह से भी उनको हमारे रोड पे, हमारे देश में जो रोड एक्सीडेंट है वो काफ़ी होते हैं. मीन्स अगर कोई पर्सन को अरेस्ट नहीं मिला है और वो ड्राइविंग करता चला जा रहा है कॉन्टीन्यूसली, देन देर आर ग्रेटर पॉसिबिलिटी दैट दैट पर्सन में कमिट एक्सीडेंट ऑफ एन इनोसेंट पर्सन. सो वी नीड टू इम्प्रूव ऑल दीज एस्पेक्ट टू गेट द बेटर रिजल्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू मे गेट पैसेज बेस्ड अपॉन दिस. Now we come to this news. SC to take up tribunal vacancy issue soon. तो बेसिकली क्या है कि हमारे देश में जो ट्राइब्यूनल हैं देयर आर वेरियस वैकेंसीज इन दिस ट्राइब्यूनल. इन ट्राइब्यूनल में बहुत सारी वैकेंसीज हैं. फॉर एग्जांपल NGT नेशनल ग्रीव ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. तो अब हम समझते हैं कि ये ट्राइब्यूनल बनाए क्यों जाते हैं. These tribunals are constituted for reducing the burden of judiciary. तो बेसिकली क्या है कि हमारे देश में जो जुडिशरी है उस पर काफ़ी बर्डन है, जिसकी वजह से जो केसेस हैं दीज आर नॉट बीइंग एडजुडिकेटेड इन ए टाइम बाउंड मैनर. आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में केसेस का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, और करोड़ों केसेस जो हैं दीज आर पेंडिंग, एंड द पेंडिंग ऑफ द केसेस आल्सो वायलेट द right to speedy trial of a person, right to speedy trial of a person under article 21 of Constitution of India. तो अगर किसी पर्सन को जस्टिस टाइमली नहीं मिलता है, then it means it is the violation of that person a right, fundamental right under article 21 of Constitution of India. So Honorable Supreme Court has raised the great concern here that government is not serious about the appointing of the various persons to the post of tribunal which are vacant. So now Honorable Supreme Court has given direction that these vacancies should be filled quickly, so that the tribunals or the litigants will not suffer due to the vacancy in the office of the tribunal. Now we come to next. These are political news. Now we come to this. Conviction rate in human trafficking cases declining. So basically conviction का मतलब क्या होता है? When the guilt of a person is proved in a court of law beyond reasonable doubt, then that person is said to be convicted. जब किसी पर्सन का जो गिल्ट है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, तब हम ऐसा मानते हैं कि
वो पर्सन कन्विक्ट हो गया। तो देखो बच्चों, दो टर्म होती हैं, एक होती है कन्विक्शन और एक होती है एक्यूजेशन। तो एक्यूजेशन मतलब किसी पर्सन पर कोई आरोप लगाया जाना। तो जब किसी पर्सन पर कोई आरोप हम लगाते हैं, उसको एक्यूज बनाते हैं, इट मीन्स एक्यूजेशन। लेकिन कन्विक्शन कब होता है? व्हेन द गिल्ट ऑफ द पर्सन इज प्रूव्ड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट बाय द ऑनरेबल कोर्ट। जब किसी पर्सन का गिल्ट ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा प्रूव कर दिया जाता है कोर्ट में। अब यहाँ पर आता है ट्रैफिकिंग को हम समझते हैं। ट्रैफिकिंग इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी एंड इट इज आल्सो अगेंस्ट अंडर आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको प्रोहिबिट करता है और सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी इसको पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। सो अब यहाँ पर कंसर्न इसका ये है कि जो कन्विक्शन रेट है हमारे देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, वो कम हो रहा है। ट्रैफिकिंग का मतलब ये होता है कि जब हम किसी पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को एज ए कमोडिटी सेल और बाई करते हैं तो हम उसको ट्रैफिकिंग बोलते हैं। सो दीज टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड विद यू। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज़। इंडिया यूएई टू साइन ट्रेड पैक्ट टुडे। इंडिया और यूएई के साथ में एक ट्रेड पैक्ट हुआ है, बायलैटरल ट्रेड पैक्ट है। तो ये दोनों देशों के बीच में हुआ है एंड it is expected to focus during a virtual meeting between Narendra Modi and Crown Prince Abu Dhabi Sheikh. So basically this trade pact will increase the business between the two countries and it will also increase the profit of our country in this regard. So this is not so important, just this information is sufficient for you. Now we come to next, ड्राफ्ट लॉज ऑन रिफ्यूजी राइट नीड रिवीजन। तो बेसिकली रिफ्यूजी कौन होते हैं? रिफ्यूजी होते हैं जिनको अपने देश से भगा दिया जाता है, ठीक है। और तो व्हेन ए पर्सन इज सैक्ड फ्रॉम हिज देयर ओन कंट्री, लाइक आप कह सकते हैं जैसे कि अफगानिस्तान में हुआ था थोड़े दिन पहले, तो अफगानिस्तान के लोगों को वहाँ से भगा दिया गया था, ठीक है, या वहाँ पर तालिबान ने शासन कर लिया था। सो दे पर्सन, ऑल दीज पर्सन सीक अजाइलम। सो अजाइलम का मतलब क्या होता है? Asylum means taking shelter in another country, किसी देश में shelter लेना। So we in India are not having sufficient laws regarding the right of refugees in our country, ठीक है। So अगर कोई पर्सन रिफ्यूजी होकर हमारे देश में आता है तो we don't have sufficient laws on that। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दो इंडिया हैज़ नॉट साइन द यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम हेयर यू मे गेट ए क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन दैट वेदर इंडिया इज अ पार्टी टू द दिस यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन, सो आंसर विल बी नो। सो एग्जामिनर में आस्क MCQ फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। Now we come to next. So you are aware about the controversies between the Ukraine, Russia and various countries of the West like this USA, UK, etc. So here in today's news, Russia has said that I am not concerned that whether this Ukraine is going to take the membership of NATO or not, but my main concern is that I should be given the security guarantee. Means if Ukraine will take the membership of NATO, then my security interest must not be jeopardized or must not be hampered. So उसने कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, but my security interest must be protected, and it is the duty of the concerned member, other member of NATO and the superpowers of the world like USA to ensure my security. So that's all for today, my dear students. I will come again with the daily Hindi news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.